Welcome to IDAS Commerce Academy. How we can pass the journal entry in journal. So I want to give some information how you can journalize, how you can record the business transaction in journal with the help of double entry system. I already made explanation on double entry system and what are the types of accounts in my first, second, third uploaded lecture. So now we have to pass journal entries about this transaction in a journal, and I uploaded this example, means I will upload this example and give this example in description. So how you can record the first transaction, that is good purchase for rupees 30,000. Goods purchase for rupees 30,000. So it is a business expense and you are known person about that. As per the double entry system, nominal account. As per the nominal account, all expenses are debited. So goods purchase, it is the expense of this business. So purchase account debited to cash account. Purchase account debited to cash account. ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट इज 30,000. You have to put amount of this transaction with the same line, that is in debit column and credit column, and give the explanation, that is your narration in a simple word, being goods are purchased. ठीक है. Second transaction, purchase government securities, means it is a investment made by businessman. So investment, it is a asset. ठीक है, it is a asset. So investment account debited. Investment account debited to cash account, because when you purchase the government securities, so you made that payment through your bank. So don't say to cash, to bank account. ठीक है, to bank account. The amount, that is 5,000 in debit column and in credit column. ठीक है, being government securities purchase. Very simple, government securities purchased. Third is purchase goods for rupees 10,000 less 20% trade discount. Goods purchase, it is the expense as per the nominal account. So purchase account debited. ठीक है, purchase account debited, but less trade discount 20%. और मैंने आपको समझाया था कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं मतलब लिखना ही नहीं. डोंट रिकॉर्ड द ट्रेड डिस्काउंट इन जर्नल. व्हाई? बिकॉज it is used to keep the profit margin of wholesaler or retailer. ठीक है, इसी वजह से उसको नहीं लिखना. But you have to deduct from this transaction 20% from 10,000, means goods purchased only for 8,000. ठीक है, 8,000. ठीक है, ख्याल में रखना. ये लगे तो मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको. 10,000, ठीक है, माइनस 2,000, 20% डिस्काउंट मैंने सब्सट्रैक्ट किया, और 8,000. ठीक है, और क्या बोलता है? 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम अटल. ठीक है, उसने आपको 5% उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दिया है. इसका मतलब इसके ऊपर. ठीक है, सो कैश डिस्काउंट, इट इज योर इनकम, बिकॉज यू गेट
that cash discount from Atal, or it is a income. Income can come under the head nominal account. As per the nominal account, debit all losses and expense, credit all gains and income. So credit goes to discount received. So discount received account, शॉर्ट में लिखता हूं रिसीव्ड अकाउंट. ठीक है, अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा? 5% बोलता है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ. यानी 400 रुपए, बराबर है 400. तो क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा 400. ठीक है. एंड दिस गुड्स परचेज फ्रॉम अटल, नेम ऑफ पार्टी इट इज गिवन, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो क्रेडिट गोज टू अटल. ठीक है ना, आपको पैसे देना पड़ेगा बाकी के बचे हुए टू अटल अकाउंट, अटल एंड कंपनी अकाउंट. आई बात समझे? अब रहा सवाल अमाउंट कितना, तो 8000 में से 4000 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7600. ठीक है, ये ख्याल में रखना. यहाँ पे कैसा था, गुड्स परचेज फॉर ₹30,000, परचेज इट इज एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ द पार्टी इट इज नॉट गिवन, सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन टू कैश अकाउंट. ठीक है, बट इन दिस ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, लेस स्टेट डिस्काउंट. Trade discount can't be recorded because it is not an expense or income for both the side, but subtract it and find out the real value of that purchase. And from Atal and company, you get a 5% cash discount. Cash discount allowed by Atal to you. So it is a income for your business, and income can come under nominal account. Credit all gains and income. So to discount account. और आपने फाइंड आउट कैसे किया, तो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वैसा भी. क्या करना है आपको, 10,000 लेना है. ठीक है, और कितना बोला था उसने, 20%, तो 20/100 हो जाता है, बराबर है. ठीक है, पे यानी कितना हुआ 2000, इसलिए मैंने 2000 लिखा था वहां पे और सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट लिखा. फिर कैश डिस्काउंट कितना था, 5%. अमाउंट कौन सी लेना पड़ेगा मुझे, 8000, बराबर है. 8000 इंटू 5/100, तो 2 जीरो काट दो, 8×5 = 40, यानी कितना हो जाएगा 400. ठीक है, इतना क्लियर कट बता रहा हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि फेस टू फेस आप पढ़ रहे हो. ठीक है, और नरेशन लिखना है, सिंपल में लिख डालने का, ज्यादा नहीं लिखा तो भी चलेगा. बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज. ठीक है, बाकी वो भी लिख सकते हैं. बीइंग गुड्स परचेज, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, यह भी लिख सकते हैं. ठीक है, टाइम की वजह से नहीं लिखता हूं. फिर दूसरा ट्रांजैक्शन ऐसा था, बॉट अ हॉर्स फॉर ₹2600. अमाउंट के तरफ ध्यान मत देना कि 2600 रुपए में भाई हॉर्स मिलता है कि नहीं, क्योंकि तुम बोलेंगे क्या कॉमेडी है क्या, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं. यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री. बॉट हॉर्स, हॉर्स ये लाइव होता है, बराबर है. ठीक है, जिंदा एनिमल है, इसी वजह से मैं लाइव स्टॉक लिखता हूं. आई वांट टू यूज अ कॉमन वर्ड बिकॉज सो मेनी सपोज द एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल परचेज बाय दैट सपोज बिजनेसमैन, सो देयर इज नो नीड टू से जस्ट लाइक काऊ. ठीक है ना, जस्ट लाइक हॉर्स एक्सेट्रा. तो मैं लाइव स्टॉक लिख डालता हूं यहाँ पे, लाइव स्टॉक, LIV, लाइव स्टॉक अकाउंट. ख्याल में रखना, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हॉर्स ये क्या है, मतलब परचेस किया तो आ ही गया ना आपके पास. ठीक है, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए में, 2600. ये आपकी एसेट हो गई, ये आपकी एसेट हो गई. दूसरा क्या बोलता है वह कि कैरिज 1200 रुपए का. ठीक है ना, जो टांगा वगैरह कुछ उसको, क्योंकि घोड़ा खरीदा उसने तो फिर इस्तेमाल करने के लिए उसने कैरिज भी खरीद लिया, ये भी उसकी एसेट हो गई. ठीक है, कैरिज वो कितने में खरीदा उसने, कैरिज 1200 में. ठीक है, 1200. ठीक है, एंड इट इज परचेज बाय पेइंग, पेइंग मींस कैश पेड किया उसने, इसीलिए सीधा लिख डालूंगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट. आई बात समझे? तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3800. ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, नरेशन लिखना है, आप नरेशन में लिख सकते हैं. अभी मैंने तो लाइव स्टॉक लिखा, अभी आप ऐसा लिखोगे, बीइंग हॉर्स एंड कैरिज परचेज. आई बात समझे? उसके बाद में क्या हुआ, गुड्स ऑफ ₹500 डैमेज इन ट्रांजिट
एंड अ क्लेम वाज मेड अगेंस्ट रेलवे अथॉरिटी। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि रेलवे के तहत 500 रुपए का माल जो भिजवाया था अपन ने, समझो अमरावती टू पुणे, पुणे टू बॉम्बे एक्सेट्रा, वो डैमेज हो गया ट्रांजिट में, और उसका क्लेम आपने रेलवे अथॉरिटी पे किया, तो रेलवे अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया, ऐसा समझ लेना, और पैसे मिल जाएंगे आपको, बरोबर है। मतलब ये ड्यू है आपको किसके पास से, मतलब है ना, क्योंकि रेलवे अथॉरिटी पर्सन हो जाएगा। ठीक है, किससे लेना है आपको, रेलवे अथॉरिटी से। ठीक है, इसीलिए रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू। ठीक है, व्हाट हैपन हियर, गुड्स डिस्ट्रॉयड यानी डैमेज हो गया, तो आपने पहले परचेज किए थे ना, तो इस गुड्स में का ही डैमेज हुआ, खराब हो गया, इसी वजह से मैं क्रेडिट परचेज को दूंगा। ये ख्याल में रखना, कंफ्यूज हो जाता है परचेज अकाउंट, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि यह जो परचेज किया है, ठीक है ना, तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया। ठीक है, इसी वजह से मैंने क्या किया, जो गुड्स डैमेज हो गया, जो परचेज किया था, ठीक है ना, उसको ही मतलब क्रेडिट करवा दिया। कितना रुपए है, 500, तो डेबिट में 500 और क्रेडिट में 500 लिख दिए। आई बात समझे? ठीक है, और दूसरा बात ऐसा है कि रेलवे क्लेम अकाउंट लिखा मैंने, मींस वी विल गेट दैट अमाउंट इन फ्यूचर, ये बात ध्यान में रखना है। फिर बोलता है हॉर्स डाइड एंड कारकेस सोल्ड। ठीक है ना, मर गया वो, उसके 100 रुपए सिर्फ आपको मिल गए। ठीक है, तो लाइव स्टॉक का मिल गया आपको 100 रुपए, कैश इट इज एसेट, कम अंडर दैट रियल अकाउंट, एज पर द रियल डेबिट ऑल मींस एज पर द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपको कैश मिला। कितना मिला, सिर्फ घोड़ा मर गया, 100 रुपए वसूल हो गए सिर्फ, इस वजह से कैश अकाउंट डेबिटेड, ये ख्याल में रखना, कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड। वैसे वो घोड़ा था यानी 2600 रुपए का, 100 रुपए मिल गया, 2500 लॉस हो गया, तो वो लॉस ट्रांसफर कर देना आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लाइव स्टॉक अकाउंट, लाइव स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट था पूरा हॉर्स का 2600। ठीक है, आपका 2500 लॉस हुआ, इसलिए डेबिट साइड में 2500 और 100 रुपए आपको कैश मिला। ठीक है ना, तो नरेशन लिखना है, मतलब वही लिखना है आपको। ठीक है, अब दूसरा ऐसा, इसको जरा हटा देते हैं, प्रीमियम पेड ₹2500। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है गोडाउन का उसने इंश्योरेंस लिया होगा बिजनेस में। ठीक है, तो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 2500, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस एज पर द मतलब नॉमिनल अकाउंट्स रूल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस। इसी वजह से मैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखता हूं, ये ख्याल में रखना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू, तो पेमेंट तो किया होगा, कैश में पेमेंट करने की पद्धत बंद हो गई, तो बैंक से ही कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था, 2500, 2500। ठीक है, अब डायरेक्शन लिखना भी रहा तो आप सिंपल में लिखोगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। यही बात समझे, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने क्या करवा दिया, पेड कर दिया। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, आपके समझ में आया होगा कि क्या लिखना है, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, बाद में क्या बोलता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5000। अब लाइफ इंश्योरेंस मतलब उसके फैमिली का, तो इसको विड्रॉल बोलना, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, ये बात ध्यान में रखना। whenever the businessman taken some amount from that business for personal use, for domestic use, so you have to say that is a drawing. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5000, तो इसको ड्रॉविंग बोलना, ख्याल में रखना। और ड्रॉविंग है पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर पर्सन है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, इसीलिए ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड, ख्याल में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड, आई बात समझे। टू, तो उसने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया, पेड किया, तो बैंक से पेड किया होगा, टू बैंक अकाउंट, सिंपल हो गया।
टू बैंक अकाउंट। अमाउंट था 5000 इसलिए 5000। ठीक है, अब मुझे नरेशन भी लिखना रहा तो बहुत ही आसान है। क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बस बाकी कुछ भी नहीं लिखना। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? कैश विड्रू कैश 500 फॉर पर्सनल यूज। अब वो कैश लेके गया बिजनेस में से, उसको जरूरत है उसके बच्चे की ट्यूशन फी देना होगा उसको, या तो रिचार्ज करना होगा जियो का। आई क्या बात समझे? 500 रुपए का। ठीक है, अब उसको लेके गया, पर्सनल यूज है, तो मैंने आपको अभी समझाया था उसको क्या बोलोगे आप? ड्रॉविंग्स। इसीलिए अगेन ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश लेके गए। आप एंट्री किसके बुक में कर रहे हो? बिजनेस के बुक में। मीन कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश इट इज अ एसेट एज पर द रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? दैट इज 500। आई बात समझे? तो आप 500 रुपए लिख डालिए। ठीक है, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सिंपल हो गया। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर क्या? सिंपल फॉर क्या? पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज एक्सेट्रा। ठीक है, फिर क्या बोलता है? इश्यू अ चेक ऑफ ₹1000 टू लैंडलॉर्ड। इसका मतलब इसने ऑफिस रेंट पे क्या लिया होगा, या बिजनेस शॉप उसने रेंट पे लिया होगा, और उसने एक चेक दे दिया लैंडलॉर्ड को। इसका मतलब ऑलवेज इट इज अ रेंट, एंड रेंट इट इज अ एक्सपेंस। ठीक है, कम अंडर द हेड नॉमिनल अकाउंट एज पर द नॉमिनल डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंस। इसी वजह से लिखता हूं रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, बरोबर? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू इश्यू अ चेक। अब चेक इश्यू किया तो पेमेंट तो बैंक ही करेगा, बैंक से ही जाएगा, इसी वजह से रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 1000 रुपीज, डेबिट में 1000 लिखवा और क्रेडिट में 1000। ठीक है, अभी ये 5वां 5th 6th प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए जो नए अगर कोई इसको देख रहा होगा तो उसके समझ में नहीं आएगा, उसको फिर से बिगिनिंग से वो देखना पड़ेगा मेरे अपलोडेड लेक्चर्स। उसके बाद नहीं तो इसी बेस पे वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। बीइंग रेंट पेड, या तो बीइंग चेक इशूड फॉर रेंट टू लैंडलॉर्ड, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हैं, आपके कॉपी में जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ। आई वांट टू सेव माय टाइम एंड यू आर आल्सो। पेड फॉर चैरिटी, स्टेशनरी एंड पोस्टेज। 3 आर द एक्सपेंसेस। चैरिटी डोनेशन करके दिया, स्टेशनरी आपने बिजनेस के लिए परचेज किया, और पोस्टेज। ऑल आर द एक्सपेंसेस कम अंडर दैट नॉमिनल अकाउंट, सो एज पर द नॉमिनल डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंस। ठीक है, इसीलिए चैरिटी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कैश पेड किया ही होगा उसने, इस वजह से टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। आई बात समझे? टू कैश क्या अकाउंट। देखो चैरिटी अकाउंट एक्सपेंस हुआ, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड कितना? 200, इसलिए डेबिट पे लिखता हूं 200, बरोबर है। स्टेशनरी डेबिट हुआ 100 और पोस्टेज है 50 रुपीज, बरोबर है। एंड दिस बिजनेसमैन पेड टोटल मींस 350, सो टू कैश अकाउंट 350। बीइंग लिखना भी रहा, सिंपल है बिल्कुल, कोई फैंसी वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। बीइंग चैरिटी, स्टेशनरी, पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड। आई बात समझे? फिर एक बार थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे अपन ने हॉर्स परचेस किया था, कोई भी एनिमल्स आपने परचेस किया तो लाइव स्टॉक ये वर्ड इस्तेमाल करना, बॉट हॉर्स। ठीक है ना, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बोला था मैंने आपको? टू कैश अकाउंट। ये कैरेज भी था साथ में। ठीक है, उसके बाद वो घोड़ा शहीद हो गया, मर गया बेचारा, हॉर्स डाइड। ठीक है ना, उसका कारकेस बेचा तो 100 रुपए मिल गया उसको, तो कैश कम्स इन योर बिजनेस एज पर द रियल अकाउंट, सो कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है ना, और भारी भरकम लॉस हो गया आपको 2500 का, इसलिए मैंने लिख के दिया आपको एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लाइव स्टॉक अकाउंट। ये बात यानी ध्यान में रखना। दूसरा एक ऐसा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम, जब वो इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड करना है बिजनेस के संबंधित, तो मैं डायरेक्ट बोला आपको इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ऑलवेज प्रीमियम पेड, ठीक है ना, बाय चेक, ठीक है, कैश भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बट इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। लाइफ इंश्योरेंस कोई बिजनेस का थोड़ी निकाले जाएगा, एसेट का, प्लांट एंड मशीनरी, खुद का या उसके फैमिली मेंबर्स का, दैट्स व्हाई इट इज अ ड्राविंग। ड्राविंग मींस वो तो पर्सन था, इसीलिए मैं पर्सनल का रूल लगाया और रिप्रेजेंट कर रहा है वो ड्राविंग्स, इसीलिए ड्राविंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तीसरा और था उसमें विड्रू कैश फॉर ₹500, उसके बच्चे को रिचार्ज करवाना था, बच्चे को नहीं रिचार्ज करना है हैंडसेट में मतलब सिम में, ठीक है, 500 वह उसने विड्रॉ कर लिया, पर्सनल यूज है, इसी वजह से फिर सर ड्राविंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और एक लैंडलॉर्ड की बात थी, इशू चेक ऑफ ₹1000 टू लैंडलॉर्ड, तो मैंने आपको समझाया भाई उसने रेंट पे शॉप वगैरह लिया होगा, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक account. Or these are the expenses, all come under nominal account. So as per the nominal, charity account debit, stationery account debit, postage account debited to cash account. और सबसे पहले यहाँ पे एक और था, परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स परचेज किया, गोल्ड परचेज किया, तो आप एक सिंपल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, इट इज अ कॉमन वर्ड, एंड अंडर दैट इन्वेस्टमेंट means heading all are come under, ठीक है। So I already used the common word that is investment. You can write down just like government securities also, but investment it is a common word, and you can mention what type of security purchase. So in narration में आप उसको दे सकते हो। एक यही यहाँ पे था परचेज गुड्स 10,000 लेस टीडी, तो मैंने आपको 2-3 लेक्चर के पहले बोला था टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड बोथ द साइड बायर और सेलर, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेंस और इनकम फॉर बोथ द, ठीक है, बस मींस बट इट इज यूज्ड टू कीप अ प्रॉफिट मार्जिन ओनली। कैश डिस्काउंट इज यूज्ड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड टू इंक्रीज द सेल, ठीक है, इसीलिए परचेस अकाउंट डेबिटेड 8,000 लिया था 20% डिडक्ट करके, ठीक है, और 2 कैश डिस्काउंट बिकॉज इट इज अ इनकम फॉर योर बिजनेस 5% जो 400 रुपए आए था, ठीक है, और 2 अटल, क्योंकि अटल का नाम है अटल एंड कंपनी, ठीक है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर ऐसे जो भी क्रिटिकल है, क्योंकि आपके सामने घर पे तो किताब है तो उससे देख के तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस है जहाँ पे समझने के लिए दिक्कत हो सकती है, वही मैं ट्रांजैक्शन मतलब समझा के और जर्नलाइज कैसे करते हैं उसको वह बताते जाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में और 1-2 एग्जांपल फिर मतलब एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box.